নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক ডাঙৰ খবৰ আপুনি বাৰু এতিয়ালৈকে সৰকাৰি ঘৰ পোৱা নাই নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব লগা কাৰণ নাই আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ অৰ্থাৎ একোটাকৈ পকী ঘৰ এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ কেঁচা ঘৰ বা জুপুৰি ঘৰ অসমৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব একোটাকৈ সৰকাৰি পকী ঘৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ইমানে সহজ হৈছে যে কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো তুলিলে আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আকৌ কৈছো এখন ফটো তুলিয়ে আপুনি লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহনো আছে তেনেহলে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত লৈছো ডাঙৰ খবৰ এখন ফটো তুলি আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে আপুনি পাব সৰকাৰি ঘৰ অসমত নাথাকিব এটাও জুপুৰি ঘৰ অসমত এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব অসমত নোহোৱা হ'ব এটাও কেঁচা ঘৰ সকলোতে কেৱল পকী ঘৰ আৰু পকী ঘৰে থাকিব অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে পকী ঘৰ থাকিব এতিয়া আৰু সৰকাৰি ঘৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগা কাৰণ নাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকলৈ আহিছে ভাল খবৰ আপুনি সৰকাৰি ঘৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই নেকি তেনেহলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই অতি সহজে এতিয়া আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আগতে এটা সৰকাৰি ঘৰ পাবলৈ বহু চিন্তা কৰিব লগা হয় কিন্তু এতিয়া আৰু টেনচন নাই সকলো দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ পাবলৈ এতিয়া আৰু সহজ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহন আছে চাৰিচকীয়া বাহন আছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ যদি মাহিলী ইনকাম 15000 টকা তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ যদি 5 একৰ মাটি আছে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব হাজু হৈছে 3 কোটি সৰকাৰি ঘৰ 3 কোটি সৰকাৰি ঘৰ হাজু কৰি তোলা হৈছে আপোনাৰ এখন মাত্ৰ ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি অতি সহজতে সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো সাবমিট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পোৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰক ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰক তাৰ পিছত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ তাত সাবমিট কৰিবলগীয়া হয় সেইসমূহ সকলো তথ্য পাতি আপুনি সাবমিট কৰক ইয়াৰ পিছত ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আপুনি এটা সৰকাৰি ঘৰ অৰ্থাৎ এটা পকী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অসমৰ লাখ লাখ জনতাক এই ভাল খবৰ দিছে মোদী চৰকাৰে হিহতিয়াকৈ 50000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিলে সৰকাৰি ঘৰ আৰু এতিয়ালৈকে অসমত 20 লাখতকৈ অধিক লোকে লাভ কৰিছে সৰকাৰি ঘৰ অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব অসমত এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে এটা সৰকাৰি ঘৰ পাবলৈ এটা পকী ঘৰ পাবলৈ বহুত চিন্তা কৰিব লগা হয় বহুত বেমেজালি সৃষ্টি হয় কিন্তু এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কোনো মধ্যভোগীৰ সহায় ল'ব নালাগে কোনো দালালৰ কবলত পৰিব নালাগে আপুনি পোৰ্টেলত গৈ নিজে ফটো আপলোড কৰক আধাৰ নম্বৰ তাত দিয়ক তাৰ পিছতে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আছে সেইসমূহ সাবমিট কৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব ভেৰিফিকেশনৰ অন্তত আপুনি লাভ কৰিব এটা সৰকাৰি ঘৰ এটা পকী ঘৰ লাভ কৰিব 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি লাভ কৰিব এই সৰকাৰি ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা ধন সকলো দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব আগন্তুক সময়ত এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব অতি সহজে আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহন আছে চাৰিচকীয়া বাহন আছে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব পূৰ্বতে দুচকীয়া বাহন বা চাৰিচকীয়া বাহন থাকিলে সৰকাৰি ঘৰ দিয়া নাছিল কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত যদি দুচকীয়া বাহনো আছে চাৰিচকীয়া বাহনো আছে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব হাজু হৈছে 3 কোটি সৰকাৰি ঘৰ অসমৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব এখন মাত্ৰ ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে অতি সহজতে সৰকাৰি ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো সাবমিট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পোৰ্টেলত গৈ আপুনি আবেদন কৰক ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰক যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আছে সেইসমূহ সাবমিট কৰক সাবমিটৰ অন্তত ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব ভেৰিফিকেশনৰ পিছতে
আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰী ঘৰ। আমি আকৌ কৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰিছে যে আগন্তুক সময়ত অসমত এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব। যলৈকে যায় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰতিজন লোকৰে ঘৰসমূহ পকী হ'ব, এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব, এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব। অসমৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানেও এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভাষ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য আমাৰ লগত আছে। একাধিক্ৰমে দুইটা ভাষ্য এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো। মন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ অনুমোদন কৰে। মই আজি मंत्री डांगोरिया कब खोजो जे हमारे प्रदेश में आपने अब तक हमें 20,91,887 प्रधानमंत्री आवास गृह का स्वीकृति दिए थे और हमने 19,57,777 गृह का अभी तक काम कंप्लीट किया हूं और थोड़ी ही आवास हमारे करने में बाकी है। लेकिन हमने जो जियो टैग किए थे वो जियो टैगिंग का बाद हमारे पास 8 लाख बेनिफिशियरी का नाम है, जिसको अभी हम आवास देने में असमर्थ है। लेकिन थोड़ी ही दिन पहले आपने 1,71,000 नया आवास का स्वीकृति दिए थे और लगभग और आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हूं तो पहला शरण में जितना आवास का जियो टैगिंग हुए थे সকলোৱে একোটাকৈ ঘৰ পাই যাব। অৰ্থাৎ আজি আমাৰ অসমৰ কাৰণে আৰু যদি আমি 6 লাখ ঘৰ পাওঁ তেতিয়াহলে যিসকলে জিঅ' টেগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। मैं शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं असम वासियों का ओर से आपको यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपका व्यवस्था होते हैं तब हमें और 6 लाख गृह का अनुमोदन दीजिए, घर का अनुमोदन दीजिए, तब हमारे पहला सूची समाप्त हो जाएंगे। साथ में मेरा आपके लिए और एक विनम्र निवेदन है। अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो न्यूनतम मानदंड है उसको काफी आपने घटाया है और अभी नया लोगों को भी घर मिलने का उम्मीद जागा है, इसलिए आपने इनका जो मानदंड है ये थोड़ा आपने उदारीकरण किए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, हमेशा ये एक कंप्लेन होते हैं कि जो हम जियो टैगिंग करता हूं वो समय हमारे अधिकारी का ऊपर लोगों का कंप्लेन होते हैं कि लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा,
3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के, 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा, इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके। उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए। दादा, 3 संशोधन किए हमने। रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा
और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। विभाग अपनी तसल्ली कर लेगा, लेकिन बहनें भी जाएंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहन कभी गलत काम नहीं करती, जो सच होता है उसी को सच बताती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस काम में लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर सर्वे की सूची से कोई नाम नहीं छूटेगा।